السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول شمس الحیا کی قسط نمبر 34 لے کر۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ہم عائشہ آپی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں نا؟ وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کی بیٹی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی اور پیچھے سب عائشہ کو لے کر آ رہے تھے۔ رخصتی سارے مہمانوں کے سامنے ہی کرنے کا فیصلہ کیا دادی نے۔ جب درے نجف سے اس متعلق پوچھا گیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے۔ اس لیے اب عائشہ کو اس کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا۔ عائشہ کو اپنے ساتھ آتے دیکھ سمرا نے بڑا چہکتے ہوئے معصومانہ لہجے میں اپنے والد سے پوچھا، ہاں، آج سے آپ کی عائشہ آپی آپ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ اس نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا تھا، پھر اس کے گال کو چوما اور گاڑی کا ڈور کھولا۔ اپنی بیٹی کو پیسنجر سیٹ پر بٹھانے کے بعد اس نے عائشہ کے لیے گاڑی کی فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھول دیا تھا۔ بہت خیال رکھنا میری بہن کا، معظم کے التجائی لہجے میں کہتے ہی درے نجف نے اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی سے دعائیں دے رہا تھا، کوئی نصیحت کر رہا تھا، تو کوئی التجا، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے جواب میں کسی سے ایک لفظ نہ کہا، بس ہر کسی کی بات پہ ہلکا سا سر ہلا دیتا۔ کہا جائے کہ وہ خود اس وقت بہت شوق میں تھا تو غلط نہ ہوگا۔ دعوت میں آتے وقت اسے کب خبر تھی کہ یہاں سے دلہن ساتھ لے کر جائے گا؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا جو کب سے رکا ہوا تھا، شاید اسے خود بھی خبر نہیں۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی عائشہ کا دل ڈولنے لگا تھا۔ وہ اتنا نروس فیل کر رہی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ لرز رہے تھے۔ آپ ہی آج سے آپ میرے ساتھ رہو گی، مزہ آئے گا نا؟ سمرا خاصا ایکسائٹیڈ لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاں بہت، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ گاڑی کے اندر جو ٹینشن کا ماحول تھا وہ چھوٹی سی بچی اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ دوپٹہ تو ہٹا لو، مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ سمرا کے کہتے ہی عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب وہ اس بچی کو کیسے بتائے کہ یہ دوپٹہ اس کے والد ہٹائیں گے منہ دکھائی کے طور پر؟ ہٹاؤ نا آپی، وہ ضدی سے لہجے میں بولی۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی اس لال دوپٹے سے، کیونکہ اس دوپٹے کی وجہ سے اسے عائشہ کے ہونٹوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ نے اس کے ضدی لہجے پر درے نجف کی جانب دیکھا کہ شاید وہ کچھ بولے، مگر وہ سامنے کی جانب دیکھ کے گاڑی چلا رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے ان کی باتیں سن بھی نہ رہا ہو۔ آپی پلیز ہٹاؤ اسے، مجھے آپ کا فیس دیکھنا ہے۔ وہ مزید جھنجھلانے لگی تو عائشہ نے آہستگی کے ساتھ دوپٹہ چہرے سے ہٹا لیا۔ آپ رو رہی تھی کیا؟ آپ کا سارا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ ہاں دیکھو، کاجل بھی پھیل گیا۔ یہ سنتے ہی کہ اس کا چہرہ خراب ہو رہا ہے اس نے فوراً ہی ٹیشو باکس کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن ٹھیک اسی لمحے درے نجف نے بھی بڑھایا تھا۔ دونوں کے ہاتھ ٹچ ہوئے۔ ایک احساس تھا جو دونوں نے محسوس کیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور پھر عائشہ نے جیسے کرنٹ کھا کے ہاتھ ہٹا لیا۔ اس نوجوان نے ٹیشو باکس میں سے 2-3 ٹیشو نکالے اور عائشہ کی جانب بڑھا دیے، جسے کچھ لمحے وہ یوں ہی دیکھتی رہی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اس کے لیے ہی ٹیشو نکال رہا ہے۔ درے نجف نے دیکھا اس لڑکی کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اس سے ٹیشو لیتے وقت۔ اس نے مرر بھی اس کی جانب موڑ دیا تھا تاکہ وہ آرام سے اپنا چہرہ ٹھیک کر لے، مگر عائشہ نے مرر میں نہیں دیکھا، وہ بس اندازے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اس پل اس کا دل قابو میں نہیں تھا، اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کسی وقت بھی باہر نکل آئے گا۔ کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ خود کو نارمل دکھا رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے سمرا کی جانب منہ کر آہستگی سے استفسار کیا۔ نہیں، یہاں تھوڑا سا کالا کالا لگا ہوا ہے۔ سمرا کی رہنمائی میں اس نے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ گھر پہنچنے پر گاڑی رکی تو اس نے پہلے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا اور اپنی بیٹی کو نکالا، پھر دوسری جانب سے آیا اور عائشہ کی جانب کا ڈور اوپن کیا۔ آپی گودی، اس کے گاڑی سے اترتے ہی سمرا نے دونوں باہیں پھیلا کر اسے گود میں لینے کی فرمائش کی، جس پر عائشہ نے فوراً ہی جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ ابھی ٹھیک طرح شفٹنگ نہیں ہوئی ہے، سامان ابھی پورا نہیں آیا تو آپ کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد ابھی وہ پورے گھر میں نظر دوڑا ہی رہی تھی جب پیچھے سے درے نجف نے آہستگی سے کہا۔ گھر پورا خالی تھا۔ فرنیچر کے نام پر ابھی صرف درے نجف کے کمرے میں بیڈ، الماری اور صوفے رکھے ہوئے تھے۔ اوکے، وہ دھیمے سے گویا ہوئی۔ اب گود سے اتر بھی جاؤ، ہاتھ دکھ رہے ہوں گے ان کے۔
दुर्रे नजफ ने नरमी से कहते हुए अपनी बेटी को उसकी गोद से उतारा था। पापा, प्यास लग रही है, पानी। उसने गोद से उतरते ही अब पानी मांगना शुरू कर दिया था। ठीक है, मैं पानी लाता हूँ, जब तक आप आयशा आपी, मेरा मतलब अपनी नई मामा को कमरे में ले जाओ। पहले उसके मुंह से आयशा आप ही निकला था, मगर फिर एहसास होने पर उसने फौरन ही लब भेजे और एक लम्हे का तवक्कुफ किया, और फिर अपनी बात कंटिन्यू रखी और इस बार अपनी बेटी की नई मामा कहकर मुखातिब किया। नई मामा? समरा ने मासूमियत से निहायत उलझे लहजे में इस्तफसार किया। जी नई मामा, ये आज से आपकी नई मामा है। नीचे बैठकर अपनी बेटी के दोनों नन्हे हाथों को बड़े प्यार से अपने हाथों में लेकर वो हसीन नौजवान समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ। ये मामा नहीं है, ये तो आयशा आपी है। आपको कुछ भी नहीं पता पापा। वो अपने नन्हे होंठों को सुकेड़कर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगी। नहीं, आपने ही तो कहा था ना कि आप चाहती हो कि आयशा आपी आपके साथ रहें। इसलिए आपके कहने पर पापा ने इनसे निकाह कर लिया। तो अब आपकी वजह से ये पापा की वाइफ बन गई हैं, और जब ये मेरी वाइफ हैं तो इस रिश्ते से ये आपकी नई मामा है। ओके। वो उसके सीधे गाल पर प्यार से सहलाते हुए अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा, जो उस वक्त जरूरी भी था। तो फिर मेरी मामा का क्या होगा? क्या वो अब मेरी मामा नहीं है? उस नन्ही सी बच्ची ने बड़े परेशान से लहजे में पूछा। छोटा सा बच्चा, उसका छोटा सा जहन। यकीनन उसे वक्त दरकार था इस तब्दीली को एक्सेप्ट करने के लिए, इन बदलते हुए रिश्तों को समझने के लिए। पता है समरा, मोहब्बत का दायरा छोटा नहीं हो जाता किसी नए के आ जाने से, बल्कि वो बढ़ता है। आपकी मामा ही रहेंगी। आप उनसे भी प्यार करो और मुझे भी अपनी मामा मान लो, और थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दो। ऐसा कर सकती हो आप? बस थोड़ा सा प्यार चाहिए मुझे तो। दुरे नजफ अभी उसे समझाने के लिए अल्फाज तलाश कर ही रहा था, जब आयशा उसके बराबर में बैठते हुए उसका नन्हा हाथ थामकर बड़े प्यार से अपनी बात समझाने लगी। उसने जब आखिर में नरम लहजे में कहा, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए मुझे तो साथ ही दो उंगलियों को आपस में जोड़कर हल्का सा इशारा भी किया, जैसे सच में बस जरा सा मांग रही हो। दूरे नजफ एक पल को जैसे भूल गया कि बात क्या चल रही थी। वो बस उसके चेहरे को देखता रह गया। छोटी सी आंखें, शरारती मुस्कुराहट और वो नाजुक सा अंदाज। खबर ही ना हुई कब उस नौजवान के होंठों पर दिल फरेब सी मुस्कान रस्सा हुई। मतलब मैं अपनी मामा से भी प्यार कर सकती हूँ और थोड़ा सा आपको भी? वो नन्ही सी परी थोड़ा सोचने के बाद अब तस्दीक वाले अंदाज में दोबारा पूछ रही थी। हाँ, ऐसा ही है। वैसे भी मुझे तो आप ही लाई हो ना यहाँ। आपके पापा थोड़ी लाना चाहते थे। आपने जिद की तो पापा लाए ना। आयशा ने जब दुरे नजफ को समरा से कहते सुना कि वो उसके कहने पर शादी करके उसे लाया है, तो उसने इस बात को बहुत पॉजिटिव वे में लिया। हाँ, जिद तो मैंने ही की थी। अब वो नन्ही परी थोड़ा जमकर बोली। तो फिर? आयशा ने जैसे फैसला उस पर छोड़ा हो। ठीक है, आज से आप मेरी नई मामा हो। वो बड़ा खुश होकर बोली, जिस पर आयशा ने उसे बड़े प्यार से गले से लगाया। शुक्र। दुरे नजफ ने खड़े होते हुए एक गहरा सांस लेकर खुदा का शुक्र अदा किया। उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला था कि वो अपनी बेटी को एक नई औरत को उसकी मामा के तौर पर कबूल करवाए, लेकिन आयशा ने सब बहुत आसानी से संभाल लिया था। चलो तो फिर अपनी मामा को कमरे में लेकर जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। वैसे आपके लिए कुछ लाऊं? निकाह कबूल करने से लेकर घर में दाखिल होने तक जो हिचकिचाहट का पर्दा वो अभी तक आयशा से महसूस कर रहा था, वो आयशा की बातें सुनने के बाद उसे हल्का पड़ता महसूस हुआ। उसने बड़ी नरमी से आयशा की जानिब मुतवज्जा होकर इस्तफसार किया। मुझे भी पानी। वो धीमे से जवाब दे हुई, लेकिन साथ उसकी जानिब नजर उठाकर भी देखा था। ठंडा या गरम? नॉर्मल। ओके। इस बात में सर हिलाकर कहता उसके सामने ही किचन की जानिब बढ़ गया। सामने ही ओपन किचन था, वाइट टाइल्स का बना हुआ। समरा उसे लेकर कमरे की जानिब बढ़ गई थी। दरवाजा खोला तो सामने बेडरूम था। सादगी में छुपी नफासत। एक दीवार पर तस्वीर फ्रेम, जिसमें दुरे नजफ अपनी बेटी के साथ मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। एक जानिब हल्की खुशबू वाला दिया जल रहा था। उसने सांस भरी। वो खुशबू जैसे उसे रिलैक्स फील करा रही थी। फिर उसकी नजर स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे पर गई। वहां क्या है? टेरेस। समरा ने तेजी से कहा। वो समरा का हाथ पकड़े ही आहिस्ता से बाहर निकली। सामने टेरेस था। हवा में नमी थी, साथ ही पौधों की खुशबू।
نیچے ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول نیلے ٹائلز کے ساتھ چمک رہا تھا، پانی میں لائٹس کا عکس تھا۔ اوپر کی جانب دیکھا تو خوبصورت ستاروں کی بارات سے سجا آسمان نظر آیا، اور اس کے دل میں ایک پرسکون سا احساس پیدا ہوا، جیسے اس گھر نے اسے باہوں میں بھر لیا ہو۔ آپ کا پانی، اور آپ کا بھی۔ درے نجف کس کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اسے نہیں خبر، وہ تو بس اس خوبصورت منظر کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اس نے جب آہستگی سے کہا تو وہ چونک کر مڑی۔ درے نجف نے ایک پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا اور ایک سمرا کی جانب۔ خوبصورت منظر ہے نا؟ اس نوجوان نے بات شروع کرنی چاہی تھی۔ بہت، عائشہ نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہاں چیئرز لگوا دوں گا، پھر آرام سے ستاروں کو دیکھتے ہوئے بیٹھ کر چائے پئیں گے یہاں۔ درے نجف کے نرمی سے کہتے ہی وہ شرمگی سے سرخ ہوتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ سمرا، چلو اچھے بچوں کی طرح کپڑے چینج کر کے آؤ اور بیڈ پر لیٹو، تاکہ آپ کی آپی کو، سوری نہیں مما کو، یہ نہ لگے کہ سمرا کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ تو سمرا کو آتا ہے؟ مجھے تو لگا چھوٹی سی بیبی ہے، اسے کہاں آتا ہوگا کپڑے چینج کرنا۔ درے نجف کو ناکو چنے چبوا دیتی تھی وہ بچی، لیکن سوتی نہیں تھی۔ اس لیے درے نجف نے آنکھوں ہی آنکھوں میں عائشہ کو اشارہ دیا تھا کہ تم بولو۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ سمرا اب بڑی ہو گئی ہے، اسے خود چینج کرنا آتا ہے، بلکہ وہ بڑے بچوں کی طرح بیڈ پر خود جا کے لیٹتی ہے اور کمبل اوڑھ کر جلدی سے سو بھی جاتی ہے۔ آپ نہ زیادہ جھوٹی تعریفیں نہ کرو پاپا، مجھے اچھے سے پتا ہے آپ یہ سب اس لیے بول رہے ہو تاکہ میں جلدی سے سو جاؤں۔ سمرا کے منہ پھلا کر کہتے ہی عائشہ نے بمشکل اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی تھی، جبکہ درے نجف نے شرارت سے آنکھیں میچ کر اپنے ہاتھ کو گدی پہ لے جا کر ہلکے سے مسلا۔ یہ آج کل کے بچے ہیں، انہیں بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے، عائشہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں درے نجف سے کہا تھا، جس پر وہ مزید مسکرانے لگا۔ اچھا تو پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے پوری رات؟ آپ کی نئی ماما آئی ہیں، وہ تھک گئی ہوں گی، انہیں بھی سونا ہے۔ آپ پوری رات جاگو گی تو وہ کیسے سوئیں گی پھر؟ اور آپ کیا چاہتی ہو کہ وہ پہلی رات ہی آپ سے اور مجھ سے پریشان ہو جائیں اور کہیں نہیں بھائی مجھے نہیں رہنا ان باپ بیٹی کے ساتھ، میں تو جا رہی ہوں۔ وہ خود پورے دن کا تھکا ہوا تھا، پھر آج جو کچھ ہوا اس کے بعد اسے احساس تھا کہ عائشہ بھی تھک گئی ہوگی، اسے بھی آرام کرنا ہوگا۔ ایسے میں اس شیطان کی نانی کو سلانا سب سے اہم تھا، کیونکہ جب تک وہ نہیں سوئے گی تب تک کوئی نہیں سو سکتا تھا۔ عائشہ ماما، اگر میں نہیں سوؤں گی تو آپ چلی جاؤ گی؟ سمرا اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت معصوم لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ ہاں بالکل، بھائی آپ انہیں آرام نہیں کرنے دو گی تو پھر وہ کیوں رہیں گی آپ کے ساتھ؟ آپ کو احساس کرنا پڑے گا ان کا۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا ان کے ماما پاپا کیسے رو رہے تھے اور بار بار بول رہے تھے ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ اب ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے وہ تو آ کر لے جائیں گے نا انہیں پھر۔ عائشہ جواب دیتی اس سے قبل ہی درے نجف تیزی سے بول اٹھا تھا۔ نہیں نہیں ماما، آپ مت جانا مجھے چھوڑ کر، آپ آرام سے سو، میں اچھی بچی بن کر جلدی سے کپڑے چینج کر کے آتی ہوں اور پھر میں سو جاتی ہوں، آپ میرے برابر میں سو جاؤ ٹھیک ہے؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عائشہ اسے چھوڑ کر جائے، اس لیے اپنے والد کی بات سن ڈر کر تیزی سے معصومانہ لہجے میں بولی، اور پھر ایک منٹ نہیں رکی تھی وہ وہاں۔ تیزی سے عائشہ نے اسے واش روم کی جانب جاتے دیکھا۔ میں چینج کروا دیتی ہوں اسے۔ سمرا کے وہاں سے جاتے ہی اب وہ دونوں تنہا کھڑے تھے۔ عائشہ کا دل پھر سے زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر وہاں سے رفو چکر ہونے کو تھی۔ وہ کر لے گی، اسے آتا ہے۔ ابھی وہ ایک قدم بھی نہ چلی تھی جب پیچھے سے اس کی نرم کلائی کو درے نجف نے پکڑا۔ اس کی کلائی پکڑتے ہی جیسے سانس اٹکی ہو۔ اسے لگتا تھا صرف بچوں کو دیکھ کر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، لیکن جب وہ درے نجف کے ساتھ تنہا کھڑی تھی تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ اسے مردوں سے بھی خوف آ گیا ہے۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی وہ۔ آنکھوں کے پردوں پر پرانی تلخ یادیں فلم کی طرح چل رہی تھیں۔ میں دیکھ لیتی ہوں پھر بھی۔ وہ جھٹکے سے کلائی چھڑا کر تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ وہ کچھ لمحے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا رہا اور پھر بہت آہستگی کے ساتھ اسے اپنے پینٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ گہرا سانس لے کر کچھ سوچتے ہوئے اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ اس رشتے کو ابھی بہت وقت درکار تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھ چھڑانے کے انداز سے اس نوجوان نے یہ بات جان لی تھی۔ کوئی ڈریس ہوگا آپ کے پاس؟ میں ان کپڑوں میں نہیں سو سکتی۔ ابھی وہ آسمان کی جانب دیکھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے عائشہ پھر چلتی ہوئی آئی۔ اس نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ میں دیتا ہوں۔ اس نے ہلکی سی سانس خارج کی
پھر دیوار میں جڑی الماری کی طرف بڑھا، سفید ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر نکالا۔ کپڑوں میں ابھی تک اس کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہ مڑا اور آہستہ قدموں سے عائشہ کی طرف بڑھا۔ یہ لے۔ لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں میں انکہی بات چھپی تھی۔ قمیض شلوار نہیں ہے؟ اس نے خاصا لچکدار لہجے میں پوچھا۔ اس نے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کبھی نہیں پہنا تھا۔ ہاں، نہیں۔ پہلے وہ کچھ کہنے لگا اور پھر جیسے زبان لڑکھڑائی اور منہ سے صاف انکار نکلا۔ یہی ہے بس، اس نے بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جس پر وہ پریشان ہو کر اپنے ہاتھ میں موجود کپڑوں کو دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے وہاں سے چل دی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی مقابل نے تیزی سے الماری میں دوبارہ نظر ڈالی۔ وہاں سفید قمیض شلوار ٹنگے ہوئے نظر آئے۔ اس نے فوراً ہی انہیں نکال کر گڑمڑی بنا کر نیچے والے خانے میں بالکل کونے میں کر کے ڈال دیا۔ کبھی کبھار سامنے موجود چیزیں نظر نہیں آتی مجھے، لگتا ہے آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں میری، وہ نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا، اور پھر ہونٹوں کے کناروں پر ایک پلے فل مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا آنکھیں موندے، جب سمرا خوشی سے چہکتی ہوئی بیڈ پر چڑھی اور اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ اس نے آنکھ نہ کھولی۔ ماما آ جاؤ، کھڑی کیوں ہو آپ؟ بس سمرا کے الفاظوں کا کانوں کی سماعت سے ٹکرانا تھا کہ در نجف نے فوراً آنکھ کھول کر سامنے کی جانب دیکھا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس وہ لڑکی بیڈ کے کنارے کے پاس کھڑی تھی۔ گھنے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے اس کے۔ وہ اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ہچکچاہٹ نمایاں تھی۔ مقابل کیسے نہ دیکھتا؟ آہستگی سے اس نے کروٹ دوسری جانب لے لی تھی، گویا کہہ رہا ہو لیٹ جاؤ، میں نہیں دیکھ رہا۔ اس کے کروٹ لینے پر عائشہ ہلکا سا مسکرائی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی کچھ نہ بول کر بھی کمفرٹ کرنے والی ادا اسے اچھی لگی تھی۔ وہ آ کر سمرا کے برابر میں لیٹی۔ پتا ہے نہیں ماما، اس ننھے سے پیٹ میں بہت باتیں تھی بتانے کے لیے، وہ کہاں سے سو جاتی۔ جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا، پیچھے سے روبدار آواز آئی، سمرا مجھے نہیں لگتا تم چاہتی ہو تمہاری نئی ماما تمہارے ساتھ رہیں۔ نہیں نہیں، میں چاہتی ہوں۔ اچھا دیکھیں، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس ننھی سی پری نے تیزی سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا، آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی بند ہونا چاہیے، آواز نہ آئے مجھے اب تمہاری۔ ہوں، یہ ہوں کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ دونوں باپ بیٹی کتنے کیوٹ تھے۔ عائشہ تو بس یہ دیکھ کے مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ عائشہ اور سمرا دونوں سو چکی تھیں۔ اس نے کروٹ بدلی تو آنکھ کھل گئی۔ آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت سا چہرہ تھا۔ پتہ نہیں وہ پیاری تھی یا اب زیادہ لگ رہی تھی۔ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اس کا معصوم چمکتا چہرہ وہ کچھ لمحے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر دوبارہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہیں دوسری جانب، ہیلو، کب سے کال کر رہا ہوں، کال کیوں نہیں اٹھا رہے آپ؟ جہاں شہر اسے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے پینک اٹیک آیا ہے۔ اندر زمر کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، اس لیے فوراً گھر والوں کو کال کرنے کا سوچا، مگر کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی اور ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ وہ اب بہتر ہے۔ یہ سننے کے بعد کہ زمر کی طبیعت اب ٹھیک ہے، وہ تھوڑا نارمل ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کال کرنا بند نہ کی۔ کال اس کے والد نے ریسیو کی تھی۔ جیسے ہی کال ریسیو ہوئی، وہ تیزی سے پریشان لہجے میں کہنے لگا، ارے یہاں اتنا رونے دھونے کا ڈرامہ چل رہا تھا، اس میں موقع ہی نہیں ملا مجھے تمہاری کال ریسیو کرنے کا۔ پریشان تھا میں بہت، عزت پر بات آئی ہوئی تھی۔ ایک تو لوگوں سے اپنی بیٹیاں نہیں سنبھالی جاتی۔ یقین کرو اس وقت اگر میرے سامنے زمر آ جائے نا تو میں اس کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں گا۔ ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اس نے پوری دنیا میں۔ کل کو میری بیٹی کے رشتوں میں بھی مسئلہ ہوگا اس کی وجہ سے۔ کال تو اس نے زمر کے متعلق بتانے کے لیے کی تھی، لیکن دوسری جانب سے جب اپنے باپ کا نہایت غصیلا لہجہ سنا تو اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس وقت زمر کے روم میں موجود تھا۔ وہ لڑکی دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اب وہ کنفیوز ہو گیا تھا کہ انہیں زمر کے متعلق بتائے یا نہیں۔ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے وہاں؟ اس نے اب انجان بنتے ہوئے استفسار کیا۔ زمر بھاگ گئی ہے، یہ ہوا ہے۔ ہمارے منہ پر کالک مل کے بھاگ گئی ہے وہ لڑکی۔ یقین کرو اگر وہ میرے سامنے آ گئی نا تو اپنی ریوالور کی ساری گولیاں اتار دوں گا اس کے سینے میں۔ وہ انگارے چبا رہے تھے۔ اچھا میری موزم بھائی سے بات کرا دے، مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے۔ موزم بہت سلجھے ہوئے دماغ کا مالک ہے۔ اسے یقین تھا وہ اسے بتائے گا تو وہ ٹھنڈے دماغ سے نہ صرف سنے گا
बल्कि कोई हल भी निकालेगा ताकि वो जुमर को वापस घर ला सके। अच्छा, मैं कराता हूँ, रुको। असल में आयशा का निकाह हो रहा है। ये वो वक्त था जब आयशा का निकाह चल रहा था हॉल में। आयशा आपी का निकाह? किससे? वो उलझकर पूछ उठा। जिरम से। ये सुनते ही जांशेर ठहर गया। आप प्लीज जल्दी मेरी बात कराएं मौजम भाई से। जांशेर को नहीं इल्म था कि जुमर के साथ क्या मसला है, लेकिन अगर वो किसी लड़के के साथ भागी होती तो उसे घर में खुदकुशी थोड़ी करती हुई मिलती। शायद जिरम और उसकी कोई लड़ाई हुई हो और वो गुस्से में आ गई हो और उससे निकाह ना करना चाहती हो। कुछ भी हो सकता था मामला। इसलिए उसे लगा कि मौजम को बता देना चाहिए। हो सकता है वो निकाह रुकवा दे और यहाँ आए और जुमर और जिरम के दरमियान जो भी मामलात हुए हैं उन्हें ठीक कर दे। वो घर का बड़ा और अक्लमंद इंसान है। वो उससे तो बेहतर ही संभालेगा इस पूरे मामले को। वरना उसे तो नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। अच्छा, कराता हूँ, रुको। उन्होंने मौसम को सेल पकड़ाया था ये कहकर कि जांशेर बात करना चाहता है कोई ज़रूरी। हेलो भाई, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जुमर मेरे। मौसम की आवाज़ सुनते ही वो तेज़ी से गोया हुआ। अभी वो बोल ही रहा था कि मुकाबिल ने उसकी बात काटते हुए गुस्से से कहा, उस लड़की का नाम ना लेना मेरे सामने, हमारे लिए मर गई है वो। जीनिया ने मौसम को साइड में ले जाकर वो हर बात बता दी थी जो वो काफ़ी वक्त से महसूस कर रही थी जुमर को लेकर। उसने बताया कि कैसे वो देखती थी कि जुमर हर वक्त फ़ोन में लगी रहती है, कैसे वो पॉलर के अंदर उस लड़की से जिसने छुपकर निकाह किया था बातें कर रही थी और फिर परेशान हुए जा रही थी। उसे तभी से थोड़ा शक था कि मामलात कुछ गड़बड़ हैं। लेकिन निकाह होने जा रहा था और वो लड़की खामोश थी, इसलिए लगा कि शायद उसे ही कोई गलत फहमी हुई होगी। वही ज़्यादा सोच रही है। लेकिन आज उसका निकाह से भाग जाना इस बात की दलील था कि उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। मुझे लगता है मौजम वो भी किसी से छुपकर निकाह करके बैठी हुई थी। जीनिया का ये जुमला अभी तक उसके कानों में चुभ रहा था। शायद यही वजह थी कि जैसे ही जांशे ने उसका नाम लिया वो गुस्से से तिल मिलाकर कह उठा, अगर वो पहले से किसी के निकाह में थी तो क्या बता नहीं सकती थी उसे? क्या जरूरी था पूरे मजमे को जमा करने के बाद मुंह पर कालक मल के भागना? सिर्फ उसकी वजह से आज आयशा को जिरम से शादी करनी पड़ रही थी। और ये तो सब देख रहे थे कि जिरम मौलवी साहब के 2 बार पूछने के बावजूद हाँ नहीं कह रहा। भाई ऐसा तो ना बोलें, जहाँ शेर ने बड़े मिन्नती लहजे में कहा, जो ये बात जाहिर करने के लिए काफी था मौसम पर कि वो जानता है जुमर कहाँ है इस वक्त। वो बहन नहीं है मेरी, ना ही इस घर की बेटी। जब वो यहाँ से भागी है तो सारे रिश्ते तोड़कर भागी है। उसने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। उसकी वजह से इस वक्त हम जलील हो रहे हैं। इसलिए अगर वो तुम्हें कहीं मिले ना तो दफना आना, मगर हमें आके मत बताना। उसके आखिरी के जुमले इस कदर सख्त तरीन थे कि जहाँ शेर के हाथ पांव लरज उठे। उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। उसने पलटकर फिर जुमर की जानिब देखा। उसे अब उस लड़की पे तरस आया था। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी और वो वहीं खड़ा था मुंजमद सा। समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। उसे लेकर कहाँ जाएगा? हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी फिक्र में इजाफा हो रहा था। एक लड़की की जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। वो कैसे उठाएगा? सुने, क्या प्लीज आप मेरी कजन का ख्याल रखेंगी? मैं बस आधे घंटे में आता हूँ। नर्स को जुमर की हिफाजत पर मामूर कर वो तेजी से निकला था। घर वालों के आने से पहले पहले उसे अपना और जुमर का सामान लाना था ताकि वो जुमर को अपने साथ ले जा सके। वो घर पहुंचकर तेजी से जुमर के कमरे में दाखिल हुआ। उसका सामान तो पहले ही पैक पड़ा था, बस जुमर का सामान सूटकेस निकालकर जल्दबाजी से उसमें भरने लगा। अलमारी खोलकर उसने उसके सारे कपड़े निकाले। वॉशरूम में जाकर उसके शैम्पू, साबुन, तौलिया तक उठा लिए। ड्रेसिंग पर रखे परफ्यूम्स और मेकअप की चीजें भी जमा करके सब पैक कर दिया। अपना और उसका सारा सामान लेकर वो वापस अस्पताल में पहुंच गया था। यार, एक हेल्प चाहिए, कुछ दिनों के लिए अपार्टमेंट मिलेगा? बेफिक्र हो जा, पैसे भरूंगा मैं। हाँ, बस कुछ दिनों के लिए। ठीक है, शुक्रिया। उसके बचपन से कोई खास दोस्त नहीं थे। ये कहा जाए कि उसने कभी बनाए नहीं तो ज्यादा दुरुस्त होगा। हाँ, मगर सलाम दुआ थी लड़कों से। ऐसे ही एक सलाम दुआ वाले शख्स से उसने कुछ दिन रहने के लिए एक अपार्टमेंट लिया। जी अर्जेंट चाहिए? जी बिल्कुल, आप ज्यादा पैसे ले ले लेकिन काम मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ओके। वो कभी किसी को कॉल कर रहा था तो कभी किसी को। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसकी पढ़ाई जारी थी। वो तो यहाँ सिर्फ शादी अटेंड करने आया हुआ था अपनी कजन की। लेकिन कब खबर थी कि जाते वक्त उसी कजन को साथ लेकर जाना पड़ जाएगा। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब।
मैं तो उसे अभी से मिस कर रहा हूँ। वो एरोप्लेन में था जब अपना सर पीछे सीट से टिकाते हुए हल्के से बड़बड़ाया। आखिरी वक्त तक उस लड़के के कानों में उम्मीद थी ये जुमला सुनने की, कि वो कहे कि हमजा मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। मगर उस दुश्मने जान ने नहीं कहा। यहाँ तक कि वो अपने घर पहुंच गया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उस लड़की के परफ्यूम की महक ने जैसे गले से लगाया हो। वो जो पूरे रास्ते खुद पर जब्त किए हुए था, उस महक को सूंघते ही बिखर गया। दरवाजे से ही लगकर रोना शुरू कर दिया। वही जानता है वो किस दिल से छोड़कर आया था उसे। अब मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर इस घर में। वो अपना सर पीछे दरवाजे से मारते हुए ऊपर की जानिब देख खुद से ही बेबसी के आलम में पूछ रहा था। दूसरी जानिब वो जो अपने घर वालों में थी, उसे लगता था बस घर पहुंच जाएगी तो हर नेमत अपने दामन में पाएगी। मगर ऐसा ना हुआ। उसे अब खालीपन महसूस हो रहा था अपने अंदर। नहीं जानती वो क्या चीज थी जो उसे शिद्दत से दुखी कर रही थी। उसे इतनी तकलीफ हो रही थी जैसे उसके जिस्म का कोई हिस्सा काट के किसी ने अलग कर दिया हो। वो नहीं चाहती थी रोना, लेकिन हर थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो एक घर में रहते हुए भी हमेशा अलग कमरों में सोते थे। हमजा कभी भी उसके कमरे में नहीं आता था। फिर वो क्यों उस लम्हे जब अपने बेड पर लेटी तो सबसे पहले हमजा को याद करने लगी। भूल जाओ उसे तैयबा, वो तो तुम्हें भुला भी चुका होगा अब तक। तुम सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थी, जिसे उसने तरस खा के अपने सर पे ले लिया था। अब तो सोचेगा भी नहीं वो तुम्हारे बारे में। वो रोते हुए खुद को समझा रही थी। हमजा ने अपना सेल चेक किया कि शायद उसकी कोई कॉल या मैसेज आया हो, ये पूछने के लिए कि सही सलामत पहुंच गए, जैसे वो करती थी। यहाँ उसने भी अपना सेल फौरन उठाकर चेक किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई मैसेज आया हो कि मैं पहुंच गया हूं, तुम फिक्र मत करना। मगर दोनों जानिब खाली मोबाइल ही मिले थे। दोनों ही कोई मैसेज ना पाकर दिल जले अंदाज में मुस्कुराए थे। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। सुबह होते ही उस नन्ही सी परी की आंख खुली। पापा सो रहे हैं ये देख दबे पांव बेड से उतरी और दुरे नजफ का मोबाइल लेकर आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती कमरे से निकल गई और अपने पीछे दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर दिया। ये अच्छा मौका था मोबाइल में गेम खेलने का, वरना दुरे नजफ ने कहाँ हाथ लगाने देना था उसे अपना मोबाइल। उस नौजवान की आंख खुली तो आयशा के खूबसूरत चेहरे को अपने बिल्कुल रूबरू पाया। आयशा का एक हाथ उसके सीने पर था। वो इतना नजदीक थी कि उसकी गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। सुबह होते ही इतना खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा, ये नहीं सोचा था उसने। वो खामोशी से उसे देखता रहा, यहाँ तक कि उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और तेजी से आंखें मूंद ली। पापा उठो, अपनी जगह पे लेटो, सारी मेरी जगह ले ली आपने। आयशा मामा के बराबर में मैं सोऊंगी। समरा की बात सुनते ही उसने यूं आंख खोली जैसे उसकी आवाज पर ही उठा हो। आहिस्ता बोलो, आपकी मामा की आंख खुल जाएगी, उसने निहायत धीमे लहजे में कहा ताकि आयशा की नींद डिस्टर्ब ना हो। वो बहुत गहरी नींद में मालूम हो रही थी। अच्छा तो हटो ना, मेरी जगह तो छोड़ो। आप तो मोबाइल लेकर गई थी ना मेरा, वापस क्यों आ गई। वो अब उन्हें वो अब निहायत आहिस्तगी से पूछ रहा था उसे देखते हुए। मोबाइल में गेम है ही नहीं, आपने डिलीट कर दिए सारे। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। वो नन्ही परी नहीं जानती जितना मलाल उसे था उससे कहीं ज्यादा उसके बाप को हो रहा था कि उसने गेम डिलीट किए ही क्यों। अब हट भी जाए, मुझे ऊपर आने दें। वो मोबाइल पटकने वाले अंदाज में टेबल पर रखकर अब पाँव जमीन पर पटकते हुए कहने लगी। आपकी मामा का हाथ रखा हुआ है मुझ पर, अगर मैं जरा सा हिला ना, मुझे डर है इनकी आंख खुल जाएगी। आप एक काम करो, मेरे पास इधर आ जाओ, देखो यहाँ जगह है ना। आयशा की नींद खराब ना हो जाए ये सोचकर उस नन्ही परी ने अपने बाबा की बात मान ली थी और वह अब उसकी साइड में आके लेटी। अब दुरे नजफ पर एक हाथ आयशा का था तो दूसरा समरा का, और वो उन दोनों के बीच में सो रहा था। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उसका सेल रिंग होने लगा। कॉल मौजम की आ रही थी इसलिए फौरन रिसीव की। अल्लाह मगफिरत फरमाए। मैं आयशा को बता देता हूँ। सुबह होते ही सब जगह ताबिश के इंतकाल की खबर फैल गई थी। अब अगला सीन। इंतकाल हो गया कब? जब उसकी आंख खुली तो उसने जां शेर को फोन पर कहते सुना, और अगले ही पल जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। उसे सबसे पहले अपने वालिद का ख्याल आया। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, मैं आता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही उसने जब पलट कर देखा
तो जुमर उसे आंसू भरी आंखों से तकती हुई मिली। किसका इंतकाल हुआ है? उसका पूरा पूरा जिस्म लरज रहा था। ये खौफ जान निकाल रहा था कि सामने से जो जवाब मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो वो उसे सुन ना सके। ताबिश का, जोहर में मैयत उठाएंगे, मुझे जाना होगा, उसने भारी दिल के साथ कहा। ताबिश के इंतकाल का सुनते ही सबको पहला ख्याल बरीरा का आ रहा था। जाने वाला चला गया, सबको इल्म था उसने जाना है, मगर जो पीछे रह गई थी वो पागल थी उसके पीछे। सब जानते थे वो नहीं जी सकेगी, अब उसे संभाल पाना मुश्किल होगा। वो सब कुछ जानते बूझते भी कभी ताबिश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। सबसे पहले जांशेर की यही सोच के जान निकली कि वो बरीरा को कैसे देखेगा। वो कितनी छोटी उम्र में बेवा हो गई थी। मैं भी चलूंगी, जुमर तेजी से बोली। बरीरा का ख्याल उसकी जान निकाल रहा था। आखिर छोटी बहन थी वो उसकी, और सिर्फ उसका नहीं पूरे खानदान का यही हाल था कि वो तो बच्ची है, वो कैसे सहेगी इतने बड़े सदमे को। नहीं, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने का कहा है, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। वो कैसे ले जाए जहां पूरा खानदान जमा होना है? अगर 1-2 साल पुरानी बात होती तो लोगों के जख्म भर चुके होते, मगर अभी तो जख्म सबके बड़े ताजे थे। मगर मैं जाना चाहती हूँ, मैं बरीरा को देखूंगी, वो टूट गई होगी, वो बहुत मोहब्बत करती है ताबिश से। मैं कैसे रह सकती हूँ यहाँ, मेरी बहन वहां रो रही होगी। जुमर, तुम कल अपने ही निकाह से भाग कर आई हो, भूल गई हो क्या? सब बहुत गुस्से में है, तुम वहां नहीं जा सकती, इसलिए चुप करके यहाँ बैठो। मैं आता हूँ और मैं बता रहा हूँ, मेरे पीछे कोई भी बेवकूफाना हरकत मत करना। वो कल रात से बहुत परेशान था, ऊपर से अब ताबिश के इंतकाल की खबर आना। उसे डर था कि जुमर उसके पीछे कोई बेवकूफाना हरकत कर सकती है। लेकिन उस पल दिल में बरीरा का ख्याल गालिब रहा। उसके वालिद के इंतकाल के वक्त वो नहीं आया था, जिसके सबब वो आज तक उससे नफरत करती थी। वो नहीं चाहता कि अब जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ है, वो वही गलती दोबारा दोहराए। जुमर अभी कुछ कहती उससे कबल ही वो दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया, और जाते जाते नर्स को उसका ख्याल रखने का कहा। साथ ही कुछ पैसे भी दिए ताकि वो उस पर नजर रखे। अब अगला सीन। किसको कॉल कर रहे हो बार बार? जीनिया देख रही थी कि मौजम बार बार किसी को कॉल कर रहा है, और निहायत ही परेशानी के आलम में है। वो बहुत गम और रंज में मुब्तला था, ये तो सभी जानते थे। लेकिन कॉल किसको कर रहा है बार बार? सारे फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों को तो वो बता चुका है पहले ही। ये सोचकर उसके मोबाइल में झांकते हुए पूछने लगी। रुमान। मौजम कुछ बोलता उससे पहले ही वो स्क्रीन पर नाम पढ़ चुकी थी। मुझे लगता है उसे पता होना चाहिए, उसने आहिस्तगी से भरे भरे लहजे में कहते हुए फिर दोबारा कॉल मिलाई। लेकिन कॉल अब भी कहाँ मौसूल हुई थी, और होती भी कैसे? रोमान ने तो वापस लौटते ही जैसे काम को ही अपनी सुबह शाम बना लिया था। उसका मोबाइल आज पूरे दिन उसके मैनेजर के पास रहा। दिन में लाखों कॉल्स और मैसेजेस आए, बस जो मैनेजर को खुद अहम लगे वो उन्हें अटेंड करके रिप्लाई करता रहा, बाकी सबको इग्नोर किया। और वो मैनेजर क्या जाने कौन मौजम। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। ताबिश, ताबिश, मुझे छोड़कर मत जाओ, ताबिश प्लीज उठो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना आता ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तुमने कहा था तुम मुझे पढ़ाओगे, तुम ठीक होते ही सबसे पहले मेरी मदद करोगे स्टडी में। तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे हमेशा। तुमने वादे किए थे, तुमने कहा था हम घूमने जाएंगे। तुमने कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ताबिश उठो, तुम नहीं जा सकते, प्लीज उठो, मैं मर जाऊंगी। उस लड़की की चीखों से सबके दिल दहल रहे थे। हर कोई उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब जनाजा उठने का वक्त आया तो वो बिखर गई। वो अपने शोहर के जनाजे से लिपट कर तड़प तड़प कर रोने लगी। ताबिश की वालदा और बहन का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बरीरा, वो तो पागल हुए जा रही थी कि बस उसके शोहर को लेकर ना जाओ, बस उसके शोहर को छोड़ दो। वो नहीं जी सकेगी, वो मर जाएगी। उसका बाप नहीं था, सब कुछ जो था वो उसका शोहर था। उसने इतनी मोहब्बत की थी अपने शौहर से कि वो जानती ही नहीं थी उसके बगैर जीते कैसे हैं। कि सब पता था कि क्या होना है, फिर भी उसका दिल कबूल नहीं कर पा रहा था। भाभी, संभालो खुद को, भाई को तकलीफ होगी आपके रोने से। ऐसे मत करो, वो तो आपको अपनी जिंदगी में रोते हुए नहीं देख पाते थे। पता है वो आखिरी वक्त तक मुझसे बस यही कहते रहे कि सिबगा, मेरे जनाजे पे मेरी बीवी को रोने मत देना। सिबगा से जितना मुमकिन हो रहा था उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब जनाजा उठा तो बरीरा का दिल जैसे फटने को था। उसे लगा उसकी जान जा रही है। वो चीखती हुई दोबारा जनाजे से लिपटने की कोशिश करने लगी, लेकिन लोग अब उसे पकड़े हुए थे।
सिबगा वो अकेले नहीं रह पाता, उसे खाँसी बहुत आती है। उसे दर्द होता है, उसे दवाई भी खानी होती है। उसे लेकर ना जाएँ, उनसे बोलो ना, इसे लेके मत जाएँ, वो नहीं रह पाता अकेले। मुझे मुझे उसके साथ ले चलें, ऐसे मत लेके जाएँ उसे, बोलो ना। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। उसके अल्फाज ठीक तरह बन नहीं पा रहे थे। नज़ला भरी आवाज़ में वो मुसलसल रो रही थी। आखिर में आते-आते तो उसने चीखना शुरू कर दिया था। बोलो ना लेकर जाएँ, तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो। ताबिश ताबिश बरीरा सँभालो खुद को। यास्मीन खातून का कलेजा फट रहा था अपनी बेटी को इतनी भरी जवानी में बेवा होते देख। उसे सँभालने आई तो वो चीख-चीख के रोने लगी। अम्मी इनसे बोले ना मेरे ताबिश को लेकर ना जाएं, वो बीमार है। मुझे पता है वो बीमार है, वो अक्सर इतना लंबा लंबा ही सोता है। सबको गलत फहमी हो गई है, वो बीमार है। मैं बता रही हूँ वो बीमार है अम्मी, वो अक्सर ऐसे ही लंबा लंबा सोता है। मैं डर जाती हूँ, मैं उसे हाथ पकड़ के हिलाती हूँ, वो नहीं उठता। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठ जाता है, वो ठीक हो जाता है। आप इनसे बोलो ना वो बीमार है, वो सो रहा है, इसे लेकर ना जाएं। जहां हर कोई एक जवान मौत पर गमजदा था, वहीं उसकी बीवी का तड़पना देख लोगों के कलेजे मुंह को आ रहे थे। ताबिश बरीरा बरीरा रोते रोते उस लड़की ने एक दिल दहला लेने वाली चीख मारी, जैसे उसकी जान निकली हो। और फिर सबने देखा कि वो बेजान सी होके गिरने लगी। उसे फौरन संभाला था उसकी माँ ने, उसकी सास, उसकी ननद, सब उसके गिर जमा हो गए थे। वहीं दूसरी जानिब, क्या हुआ सर, ठीक है आप? दिल क्यों पकड़ रहे हैं आप अपना? अचानक ही उस लड़के को अपने दिल में शिद्दत की ठेस उठती महसूस हुई। वो नहीं जानता क्यों, लेकिन उसका दिल शदीद भारी होने लगा। एक अजीब सी बेचैनी तारी हो गई उस पर, एक इज़्तिराबी सी कैफियत, जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्यों हो रही है अचानक। उसके मैनेजर ने उसे पानी दिया। रोमान ने तेजी से पानी पिया, लेकिन वो दिल का दर्द नहीं जा रहा था। उसे अपना दिल तकलीफ में महसूस हो रहा था, मगर बज़ाहिर तो वो बिल्कुल ठीक और नॉर्मल लाइफ जी रहा था। कुछ देर पहले ही वो अपना शूट खत्म करके आया था। क्या डॉक्टर के चलें, ज्यादा दर्द हो रहा है तो? मैनेजर ने फौरन ही परेशान होकर इस्तफसार किया। वो रोमान के चेहरे को सुर्ख पड़ता देख रहा था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़कर जोर से भींच दिया हो। उस खूबरू नौजवान ने दिल पर हाथ रखा हुआ था। मैं सिर्फ इस वक्त रोना चाहता हूँ। उसके लहजे में ऐसा भारीपन था कि मैनेजर के पास अल्फाज ही न रहे। अब अगला सीन। जाशिर बरीरा कैसी? वो वॉशरूम से निकली थी, अभी अपने बेड की जाने बढ़ ही रही थी, जब जाशिर कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही वो फौरन फिक्रमंद होकर पूछने लगी। अभी उसका सवाल मुकम्मल भी ना हुआ था कि जाशिर रोते हुए आकर बड़ी गर्मजोशी से उसके सीने से लगा। वो आज तक इसी गुमान में था कि बरीरा उससे मोहब्बत करती है और सिर्फ उसे सजा देने के लिए किसी दूसरे के पास गई है। लेकिन आज जिस तरह वो ताबिश के लिए उसे तड़पते हुए देखकर आया था, उसके बाद उसे यकीन आ गया था कि उस लड़की के दिल में सिवाय उसके शौहर के अब कोई नहीं बचा। और ये ख्याल उसके लिए सुहाने रूह था। अपनी मोहब्बत को किसी और के लिए तड़पते देखना आसान नहीं होता। वो बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ में थी वो, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। अगर मुझे पता होता कि उसकी खुशी ताबिश में है, तो यकीन करो मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर ले आता उसके इलाज के लिए। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। वो बच्चों की तरह रोते हुए जुमर से कह रहा था। जारी है। तो जी जनाब, ये थी आज की एपिसोड। ओके, शुरू से तो सब बहुत हैप्पी हैप्पी और वो सब का था, लाइक ज़िंदगी है ना कि एक इंसान के घर में इतनी खुशी आ रही है और दूसरा इंसान जो है वो इतने गम से गुज़र रहा है। तो इस नॉवल ने हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, लाइक ये नॉवल। आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों का क्या है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब देखें जैसे कि शुरू में आयशा और दुर नजफ़ का था, एक मतलब एक उनकी नई लाइफ स्टार्ट हुई, जैसे भी हुई, लाइक उसको जितनी भी पीछे तकलीफ़ें मिली, अब लाइक उसकी अच्छी ज़िंदगी का एक शुरुआत हुई है। एंड वहीं दूसरी जानिब बरीरा जो इतनी छोटी एज में है, इतना प्यार करने वाला शौहर, इतनी एक तरह की आइडियल लाइफ थी उसकी, मतलब सास ससुर इतने अच्छे, सब इतना अच्छा, एंड उसका लेकिन हस्बैंड जो था वो, उसकी डेथ हो गई। एंड इतना बुरा लग रहा था जब वो अल्फाज थे ना कि वो खबर दे रहे हैं कि इंतकाल हो गया ताबिश का, लाइक हमारे लिए वो जस्ट एक करेक्टर है, स्टिल नहीं इमेजिन किया जा रहा कि कैसे वो मर सकता है। तो खैर, और अब जांशेर भी वापस आ गया है। एंड वो जो रोमान वाला सीन था, लाइक उसके दिल में दर्द हो रहा है, वो उफ, अल्लाह, इतना इंटेंस और इतना इमोशनल सीन था वो। मुझे तो आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा सेंटी लगी और अच्छी थी, लाइक ऑब्वियसली अब प्रोग्रेस करना है तो इस फेज से हमें गुजरना पड़ेगा। तो खैर, एंड
अब वो पॉइंट आया मुअज़्ज़म की लाइफ में कि जिसमें उसने मतलब अपनी बहन को डिसऑन कर दिया। वाक़ई सही बात है, ज़ुमर ने मतलब गलती पे गलती कर रही है वो लड़की। क्या मतलब तुमने पहले एक तो छुप के निकाह किया, अब वो तुम्हें जान से तो नहीं मार देते ना, वो कोई ना कोई हल निकालते। बजाए इसके कि वो अपने भाई को बताती जिस पे उसको इतना मान था अपनी बहन पे और वो सारा कुछ, उसने जो है वो एक और गलती की, लाइक वो इतनी गंदी हरकत की है उसने घर से भाग के। पर ख़ैर देखते हैं क्या होता है अभी, लाइक मतलब आगे स्टोरी चलेगी तो पता चलेगा ना उसके साथ भी क्या होता है। एंड उसकी मतलब लाइक इसी तरह से स्टोरी है ना। तो ख़ैर आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है? और पूरी स्टोरी को बता दिया करें जो अच्छा लगे, जो ना अच्छा लगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।